मित्रों नमस्कार, वेलकम in our online study of mathematics YouTube channel. And today dear I want to discuss about the admission of class 1 in Kendriya Vidyalaya Sangathan. So dear I want to tell you that the admission of class 1 has been open. The registration date it is 28th February 2022, and the last date of the registration is 21st March 2022. So if anyone want to admission in class 1 of your ward, then you will registered on the Kendriya Vidyalaya Sangathan, as I want to discuss in the next. So let us start. How can you registered into the Kendriya Vidyalaya Sangathan for the admission of your ward in class 1 for the session 2022 and 23. So dear, let us start. First of all, what to do? I want to tell you that about the date. Dear, first of all, I want to tell you that the advertisement of admission, this is the last week of February 2022, and online registration for class 1, this is 28th of February 2022 from Monday 10 a.m. and onwards, and the last date of online registration for class 1 is 21st of March 2022 Monday up to 7 p.m. तो आप अगर अपने वार्ड का रजिस्ट्रेशन या फिर एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप 21 मार्च 7 बजे शाम से पहले रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. And after the registration, first list will be declared on 25th March 2022, and second list will be declared 1st April 2022, and after that if there are some seats remaining, then the third list will be declared on the 8th April 2022. So this is the date for the registration and the admission. So now how can you register on the Kendriya Vidyalaya Sangathan portal? So let us see. So let us see here. Dear, you will read the general instructions for the admission or filling the registration form. So here is the first one. These instructions pertain to online application for admission to class 1 in Kendriya Vidyalaya for academic year 2022 and 23. In the remainder of these instructions, Kendriya Vidyalaya means say Kendriya Vidyalaya. Okay. So dear, first of all, you will first of all, I want to tell you that when you registered in the Kendriya Vidyalaya Sangathan, then you will fill the form, only one form in one Vidyalaya. Don't apply multiple registration in a same Vidyalaya for same child. एक ही विद्यालय में एक बच्चे का केवल एक बार ही रजिस्ट्रेशन करें. अगर आप कई बार कर देते हैं तो आपका लास्ट रजिस्ट्रेशन ही वैलिड माना जाएगा, बाकी सारे के सारे रिजेक्ट हो जाएंगे. हो सकता है आपके सारे रजिस्ट्रेशन भी रिजेक्ट हो जाएं. तो केवल एक विद्यालय में एक बार ही अपने बच्चे का रजिस्ट्रेशन करें. इसके बाद रजिस्ट्रेशन के लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए, इसके लिए आप अपना डॉक्यूमेंट्स पूरा रेडी रखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, ए वैलिड मोबाइल नंबर विथ इंडियन सिम कार्ड. आपके पास एक मोबाइल फ़ोन होना चाहिए जो आपका चल रहा हो, जिसमें आपका OTP आएगा. तो इस तरह से आप अपना मोबाइल अपने पास रखेंगे जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हों. एक वैलिड ईमेल ID आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो आपके उसी ईमेल ID पर
और जो आप रजिस्ट्रेशन करेंगे वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी आपके उसी ईमेल आईडी पे आपको प्राप्त होगा। इसके बाद एक डिजिटल फोटोग्राफ या स्कैन फोटोग्राफ जो आपके बच्चे का है, जब आप फॉर्म भरेंगे तो उसमें आपको अपलोड करना पड़ेगा। क्योंकि आपको बता दें कि यहाँ पे जो एडमिशन आप अपने वार्ड का लेंगे तो यहाँ पे आपको पूरा वर्क ऑनलाइन करना होगा। ऑनलाइन ही आप अपने बच्चे का रजिस्ट्रेशन करेंगे, ऑनलाइन ही फॉर्म भरेंगे, विद्यालय से इसका कोई संबंध नहीं होगा। तो सारा वर्क ऑनलाइन होगा, इसलिए आप एक डिजिटल फ़ोटो रखेंगे और ये फ़ोटो आपकी 256 KB की होनी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा की होगी तो वो अपलोड नहीं होगी, तो इसलिए उसका साइज है ना वो 256 KB होना चाहिए। ए स्कैन कॉपी ऑफ चाइल्ड बर्थ सर्टिफिकेट, एक बर्थ सर्टिफिकेट या तो PDF फॉर्म में हो या फिर JPG फॉर्म में हो और इसका भी साइज 256 KB का होना। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, इसके बिना आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। तो एक आपका वैलिड फ़ोटो होना चाहिए और एक जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो आपका 256 KB का होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट 5th नंबर पे डिटेल्स ऑफ गवर्नमेंट सर्टिफिकेट इन केस यू आर अप्लाइंग अंडर इकोनॉमिकली वीक सेक्शन। अगर आप किसी वीक सेक्शन में वहाँ पे जो क्राइटेरियाज हैं अगर आप उसको सिलेक्ट करते हैं तो ये सर्टिफिकेट भी आपको अपलोड करना पड़ेगा। वहाँ पे स्पेस होगा अपलोड द सर्टिफिकेट, तो ये भी आपको रेडी रखना पड़ेगा। इसके बाद गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए ट्रांसफ़र डिटेल्स ऑफ पेरेंट का ग्रैंड पेरेंट्स हुज सर्विस क्रेडेंशियल विल बी यूज्ड इन द एप्लीकेशन। तो ट्रांसफ़र एप्लीकेशन जो आपके हुए हैं वो डेटें आप अपने पास रखेंगे जिसको आपको फिल करना पड़ेगा। तो ये आपकी रिक्वायरमेंट हैं जिन्हें आपको रजिस्ट्रेशन से पहले एक साथ रख लेना होगा, उसके बाद ही आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन करने से पहले आप जो इंस्ट्रक्शंस हैं उन्हें अच्छे से एक बार पढ़ लेंगे, आपको कोई भी रजिस्ट्रेशन करने में प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए रजिस्ट्रेशन आप कैसे करेंगे। सबसे पहले आप केंद्रीय KBS एडमिशन गूगल में टाइप करेंगे। टाइप करते ही आपका यहाँ पे एक इंटरफेस ओपन होगा जिसमें आपको सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे, इन्हें आप अच्छे से पढ़ लेंगे। पढ़ने के बाद आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप देखिएगा जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको एक लॉगिन कोड तुरंत प्राप्त होगा। जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो लॉगिन कोड्स आपको मिलेगा जब आप सक्सेसफुली उसमें रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। तो एक लॉगिन कोड प्राप्त होगा उसी स्क्रीन पर, उसे आप नोट करके रखेंगे। उसी लॉगिन कोड के थ्रू आप जब उस फॉर्म को फिलअप करेंगे तो उसी लॉगिन कोड के थ्रू आप लॉगिन कर सकते हैं और अपने वार्ड का जो फॉर्म है एडमिशन फॉर्म है वो भर सकते हैं। तो वो लॉगिन कोड आप लिख के रखेंगे। ठीक है, बिना लॉगिन कोड के आप लॉगिन नहीं कर पाएंगे और उस केस में आपका आप जो फॉर्म है वो भी नहीं भर पाएंगे। तो ये लॉगिन कोड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, और जो लॉगिन कोड आप डालेंगे उसके बाद में जो उसमें एक पासवर्ड भी रिक्वायरमेंट होगा, तो पासवर्ड आपके चाइल्ड का जो डेट ऑफ बर्थ है वो होगा। इसके बाद में जब आप लॉगिन कर लेते हैं, लॉगिन करने के बाद जब पूरा फॉर्म फिल हो जाएगा तो सबमिट जब आप बटन दबाएंगे उसमें लास्ट में सबमिट बटन होगा। तो सबमिट बटन दबाने के बाद आपको एप्लीकेशन सबमिशन कोड प्राप्त होगा। अगर एप्लीकेशन सबमिशन कोड आपको नहीं मिलता है तो फिर आप मानिए कि अभी आपका फॉर्म सबमिट नहीं हुआ है, मीन्स आपका फॉर्म अभी फिलअप नहीं हुआ है, तो आप फिर से उसे फिल करेंगे। ये जब आपको एप्लीकेशन सबमिशन कोड आपको मिल जाता है तो आप समझेंगे कि आपके वार्ड का
रजिस्ट्रेशन हो गया है और फॉर्म भी ऑनलाइन फिलअप हो गया है। अब आपको कुछ और नहीं करना है। लेकिन ये जो एप्लीकेशन सबमिशन कोड है इसको भी आप एक बार नोट करके रखेंगे, क्योंकि जब भी कहीं पर इस विषय में आपसे पूछताछ की जाएगी या फिर कुछ भी आपसे डिटेल मांगा जाएगा तो ये रजिस्ट्रेशन कोड आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पे ओनली आफ्टर बोथ स्टेप्स 5A एंड 5B above have been completed is the application process completed. Completing only step 5A will not result in your application being submitted to KBS। मतलब जैसे जैसे आप भरेंगे तो दो ऑप्शन में आपसे ये फॉर्म भरवाया जाएगा। एक में पेरेंट का डिटेल होगा और दूसरे में स्टूडेंट्स का मतलब आपके वार्ड का डिटेल होगा। तो इस तरह से दोनों जब आपके भर जाएंगे तभी आपको सबमिशन बटन आपको प्राप्त होगा, जिसे आप क्लिक करके सबमिट करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो जाएगा। आप कंप्लीटिंग द रजिस्ट्रेशन सबमिटिंग एन एप्लीकेशन रिक्वायर्ड यूज ऑफ वन टाइम पासवर्ड। जब आप इसे सबमिट करेंगे तो आपके पास फिर से वन टाइम पासवर्ड आएगा, OTP आएगा। तो उसको आप जब इंटर करेंगे तभी आपका ये एक्सेप्ट होगा, नहीं तो एक्सेप्ट नहीं होगा। तो उसके लिए आपको पहले ही बता गया कि आप एक अपना मोबाइल आपके पास रखेंगे और ध्यान रखिएगा कि जब भी आप मोबाइल नंबर उसमें एंट्री करें तो वो आपका मोबाइल हो तो ज़्यादा सही रहेगा। आप अपने किसी रिलेटिव का मोबाइल नंबर उसमें एंट्री ना कराएं, क्योंकि OTP फिर उन्हीं के पास जाएगा। तो आप अपना मोबाइल नंबर ही उसमें एंट्री करें ताकि जो भी डिटेल है, जो भी SMS हैं वो आपके मोबाइल पे ही आपको मिलें। तो इस तरह से आप अपना एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। और सबमिट करने के बाद वहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन भी आएगा, तो आप अपने एप्लीकेशन को सेव कर सकते हैं या फिर प्रिंट कर सकते हैं। जब भी आप एडमिशन के लिए जाएंगे, अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो वही फॉर्म आपको लेके विद्यालय में जाना पड़ेगा, जहाँ पे आपको स्कूल आपको कॉल करके बुलाएगा कि आपके स्टूडेंट्स का, आपके बच्चे का एडमिशन हो चुका है। तो आप सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपने अपलोड किए थे और ये जो फॉर्म है उसका जो आपने प्रिंट ले रखा है, उस प्रिंट को लेके आप विद्यालय पहुंचेंगे और जो भी रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट करने के बाद आपका फाइनल बच्चे का एडमिशन हो जाएगा। तो ये चीज़ें थी आपके लिए इम्पॉर्टेंट थी, तो इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे। आप अप्लाई करने से पहले एक बार अच्छे से अगर इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। और यहाँ पे एप्लीकेशन कोड और लॉगिन कोड ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसे आप अच्छे से नोट करके रखेंगे। जब भी आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे, मींस एडमिशन फॉर्म ऑनलाइन फिलअप करेंगे, तो वहाँ पे स्टार, रेड स्टार वहाँ पे आपको शो होगा। ये रेड स्टार मैंडेटरी हैं। यहाँ पे जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मांगा गया है उसे आपको भरना ही भरना होगा। अगर आप उसे एक भी कॉलम को छोड़ देते हैं तो आपको जो पोर्टल है वो आपको आगे बढ़ने नहीं देगा। तो आपको इसे ज़रूर भर लेना है। और अगर आपको गाइडलाइंस में कुछ भी प्रॉब्लम है, कोई भी दिक्कत है, अगर कुछ और जानकारी चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। एडमिशन गाइडलाइन, जब आप इंस्ट्रक्शन जब पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पे ये वर्ड भी आपको दिखने को मिलेगा, सी हियर KBS गाइडलाइंस। तो अगर इस पर क्लिक करेंगे तो पूरा गाइडलाइंस भी मिलेगा। और वैसे भी आप केंद्रीय विद्यालय संगठन एडमिशन गाइडलाइंस हमारे YouTube चैनल में वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक होगा, उस पर क्लिक करके भी आप प्राप्त कर सकते हैं कि इसकी गाइडलाइंस क्या हैं, रूल्स क्या हैं, किस तरह से हम एडमिशन करते हैं और क्या है। और यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ है दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा एज के विषय में चेंज किया हुआ है। आपके बच्चे का एडमिशन तभी होगा जब आपके बच्चे की आयु जो है ना, एज है 6 ईयर कंप्लीट हो गई होगी। ये चेंजिंग NEP 2020 के अनुसार चेंज किया गया है। तो अब आप, पहले क्या होता था कि अगर आपके वार्ड की एज 5 ईयर कंप्लीट हो गई है तो he and she is eligible for the admission, but now
according to the NEP 2022, now your ward is will be eligible when he is crossed 6 years his or her age। अगर उसकी उम्र 6 साल कंप्लीट हो चुकी है तो फिर आप अपने बच्चे का एडमिशन केंद्रीय विद्यालय संगठन में करा सकते हैं, केंद्रीय विद्यालय में करा सकते हैं। और अगर 6 साल से कम उम्र है तो आप अभी अपने बच्चे का एडमिशन केंद्रीय विद्यालय संगठन में नहीं करा सकते हैं। ये NEP 2022 जो लागू हुआ है उस आधार पर इस समय बच्चे की एज 6 ईयर की गई है, क्योंकि 3 इयर्स उसके लिए प्ले और नर्सरी और KG के लिए रिजर्व है, जो केंद्रीय विद्यालय संगठन में नहीं होता है। तो यहाँ पे जब बच्चे की उम्र 6 इयर्स हो जाएगी तभी आपका बच्चा एडमिशन के लिए होगा, तभी बच्चे का एडमिशन हो सकता है और तभी एप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। आइए, फॉर्म में क्या क्या चीज़ें, रजिस्ट्रेशन आप कैसे करेंगे, रजिस्ट्रेशन को कैसे करना है, इसके विषय में भी आपको थोड़ा सा जानकारी दे देते हैं। यहाँ पे जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे पहले आप इंस्ट्रक्शंस को पढ़ेंगे। इंस्ट्रक्शंस पढ़ने के बाद में आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए वही चीज़ें आपको ज़रूरत होंगी। इसके बाद आप लॉगिन करेंगे दोबारा से पोर्टल पर। लॉगिन करने के बाद फिर जो भी रिक्वायरमेंट है उसे फिल करेंगे एप्लीकेशन में और डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करेंगे। जो भी इंफॉर्मेशन है वो सारी फिल करनी है। पेरेंट डिटेल्स आपको फिल करनी है। इसके बाद आपको स्कूल चूज करना है कि आप किस विद्यालय में एडमिशन कराना चाहते हैं। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स जितने भी हैं वो अपलोड करने हैं। और उसके बाद आप डिक्लेरेशन एक होगा तो उस पर मतलब डिक्लेरेशन का मतलब है आपको चेक्स बॉक्स में क्लिक करना होगा, जो उसकी कंडीशंस हैं उसे एक्सेप्ट करना होगा और एक्सेप्ट करने के बाद आप सबमिट करेंगे तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। और जब सबमिट हो जाएगा तो आपको एक सबमिशन कोड मिलेगा और सबमिशन कोड आप लोड कर लेंगे। इस तरह से आपका जो रजिस्ट्रेशन है और फॉर्म है वो कम्प्लीटली फिल हो जाएगा। उसके बाद अब आप वेट करेंगे कि आप लिस्ट में आपके वार्ड का नाम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये तो हुआ प्रोसेस रजिस्ट्रेशन का और फिलिंग का। लेकिन ध्यान रखिएगा आप अपने एप्लीकेशन का प्रिंट जरूर करेंगे। तो देखिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी। दोस्तों, हाउ कैन यू स्टार्ट द प्रोसेस? फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल ओपन द गूगल। दिस इंटरफेस विल बी ओपन। आफ्टर दैट नाउ you will type here KBS admission. After typing here you will search, then a new interface will be open. इस तरह से एक नया इंटरफेस आपके स्क्रीन पे ओपन होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल केंद्रीय विद्यालय संगठन, और उसमें नीचे भी आपके कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, न्यू रजिस्ट्रेशन एंड अभी इंटरफेस ओपन हो रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट में लॉगिन, डाउनलोड ऐप के थ्रू भी आप अपने वार्ड का एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। आप KBS ऐप यहाँ पे दिया हुआ है, उसको अगर आप डाउनलोड कर लेते हैं तो सारा इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे मिल जाएगा, उसके थ्रू भी कर सकते हैं। तो अगर आप वेबसाइट के थ्रू करना चाह रहे हैं तो आप ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल केंद्रीय विद्यालय संगठन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये इंटरफेस आपका ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए राइट हैंड साइड में अपना आवेदन प्रिंट करें, प्रिंट योर एप्लीकेशन, तो इसे जरूर आप प्रिंट करके रखेंगे। चेक योर एप्लीकेशन स्टेटस, यहाँ से आप एप्लीकेशन स्टेटस भी चेक कर पाएंगे, क्योंकि जो आपका सबमिशन कोड मिलेगा वो आप इंटर करके आप इसके बाद इंस्ट्रक्शन फॉर फाइलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म, इंस्ट्रक्शन आप इस पर क्लिक करके जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं इसे पढ़ सकते हैं। वीडियो इंस्ट्रक्शन फॉर फाइलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म, अगर आपको कुछ समझ में फिर भी नहीं आता है तो लास्ट 4 ऑप्शन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं कि कैसे आपको फॉर्म को फिलअप करना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। और आप गूगल यहाँ पे लास्ट में आप देखिए राइट हैंड में 5 नंबर पे दिया हुआ है डाउनलोड आवर मोबाइल ऐप टू अप्लाई फॉर एडमिशन टू इन क्लास 1। तो यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल में
एक ऐप डाउनलोड हो जाएगा, उसके थ्रू भी आप एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। तो ये आपका 2022-2023 के लिए इंटरफेस ओपन हो गया। अब आप देखिए यहाँ रेड कलर से लिखा हुआ क्लिक हियर टू रजिस्टर। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे पूरा इंस्ट्रक्शंस ओपन हो गया है। इसे आप अच्छे से रीड कर लेंगे और रीड करने के बाद आप देखिए यहाँ पे लास्ट में यहाँ दिया हुआ जो चीज़ और भी आपको चाहिए, तो यहाँ पे देखिए KBS गाइडलाइंस रेड में लिखा हुआ है इस तरह से, ये देखिए KBS गाइडलाइंस हेयर। तो अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो KBS गाइडलाइंस मिल जाएंगे। यहाँ से भी आप KBS गाइडलाइंस को रीड कर सकते हैं, रेड कलर से इंडिकेटेड है, ठीक है। तो जिस चीज़ों की, और अगर आपको यहाँ पे गाइडलाइंस देखनी है तो आप जो भी चीज़ें हैं KBS गाइडलाइंस में रेड कलर में सिंबल दिया हुआ है। इसके बाद जब आपने ये इंस्ट्रक्शंस पढ़ लिया अच्छे से, उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे रेड में ये लिखा है गो टू नेक्स्ट, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे ये इंस्ट्रक्शंस आपके सामने आ गए हैं। ये इतना पढ़ने के बाद ये सारी चीज़ें आपको करना है। यहाँ पे देखिए लास्ट में ये बॉक्स है, चेक बॉक्स, इस पे आप क्लिक करेंगे। आई हैव केयरफुली गॉन थ्रू ऑल सेक्शंस एंड सब सेक्शंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय ऑल टर्म्स। तो इस पे क्लिक करेंगे और क्लिक करके यहाँ पे प्रोसीड पे आप इंटर करेंगे। प्रोसीड पे जैसे ही इंटर करेंगे आपके चाइल्ड का, आपके वार्ड का रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे ये आपके वार्ड का रजिस्ट्रेशन फॉर्म है तो आप यहाँ पे अपने वार्ड का नाम, ये इंटरपेज जब आपका ओपन होगा तो आप देखेंगे यहाँ पे फर्स्ट नेम ऑफ योर चाइल्ड। तो इस सेक्शन में आप फर्स्ट नेम ऑफ योर चाइल्ड टाइप करेंगे। जैसे आपका नाम राजेश कुमार शुक्ला है तो आप यहाँ पे लिखेंगे राजेश, और यहाँ पे आप कुमार लिखेंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे शुक्ला। इसके बाद में इज़ द चाइल्ड डिफरेंट एबल्ड, अगर आपका बच्चा हैंडीकैप्ड है तो इसमें से यस और नो आपको सिलेक्ट करना है। अगर है तो यस, नहीं है तो नो पे आप सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद में डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे। इसके बाद में इज़ द चाइल्ड सीकिंग एडमिशन ए चाइल्ड ग्रांड चाइल्ड ऑफ केंद्रीय विद्यालय संगठन एम्प्लॉय, अगर आप केंद्रीय विद्यालय एम्प्लॉय का चाइल्ड है तो यहाँ पे चूज करेंगे। जो ऑप्शन आएंगे उसमें से एक ऑप्शन आप चूज कर लेंगे। इसके बाद ईमेल आईडी, यहाँ पे आपको वैलिड ईमेल आईडी टाइप करनी है, इसी पे आपको जो भी इंफॉर्मेशन है प्राप्त होंगी। और यहाँ पे एक वैलिड मोबाइल नंबर आपको टाइप करना होगा जिस पे आपको OTP प्राप्त होगा। इसके बाद ये कैप्था है, ये कैप्था आप यहाँ पे टाइप करेंगे। टाइप करने के बाद आप सिंपली यहाँ रेड बटन जो आपको शो हो रही है इस पर क्लिक करेंगे तो आपके स्टूडेंट्स का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। और रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद आपको एक लॉगिन कोड तुरंत प्राप्त होगा इंटरफेस पे, उसे आप नोट करेंगे। उसी लॉगिन कोड के थ्रू आप दोबारा से लॉगिन करेंगे और लॉगिन करने के बाद आप अपने वार्ड का जो एडमिशन फॉर्म है उसे फिल करेंगे। और फिल करने के बाद जो भी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट हैं वो आप फिल कर लेंगे। और फिल करने के बाद जब आप सबमिट करेंगे, रेड स्टार जहाँ जहाँ भी होगा वो आपको मैंडेटरी होंगे, उनको आपको फिल करना ही होगा। अगर आप ये चीज़ नहीं फिल करते हैं तो आपको वो आगे इंटरफेस बढ़ने नहीं देगा। तो सारे रेड स्टार जहाँ जहाँ पर हैं वो सारी मैंडेटरी चीज़ें आप भर लेंगे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करके। जैसे ही सबमिट करते हैं तो आपको फिर सबमिशन कोड प्राप्त हो जाएगा। और जैसे ही सबमिशन कोड प्राप्त हो जाएगा तो आप सोचिएगा कि आपका फॉर्म फिल हो चुका है, उसका प्रिंट लेकर रख लीजिए। जब एडमिशन होगा, लिस्ट निकलेगी तो आप विद्यालय में जाके देख सकते हैं। और उसके साथ साथ आप स्टेटस भी देख सकते हैं वेबसाइट पे कि आपके बच्चे का जो फॉर्म सबमिट हो गया है, कहाँ तक पहुँचा है। तो ये सारी चीज़ें जानकारियाँ थी। तो इफ़ यू वांट टू admission in the Kendriya Vidyalaya Sangathan, then without delay you proceed now just. So wish you all the best. Thank you for this.